انرجی کے منسٹر ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے، وہ ان کے کان تک جوں تک نہیں رینگتی اور کئی خطوط لکھے گئے ہیں، میں نے آپ دوستوں کو بھی دکھائے ہیں اور ابھی بھی تازہ خط لکھا ہے کہ بھائی آپ آ جائیں، بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ، بیٹھ کے مسئلہ حل کریں، کیونکہ جب یہاں کرائسس تھا کراچی میں، جہاں جب بات چیت ہو رہی تھی تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا، تو میں نے تازہ ان کو خط لکھا ہے کہ نیپرا کا چیئرمین اور وزیر توانائی جو ہیں فیڈرل گورنمنٹ، سیکرٹری پاور، یہ سب ادھر آئیں، بیٹھیں، یہاں کراچی الیکٹرک کا مسئلہ وہ بھی آ کے بیٹھ کے مسئلہ دکھیں، بتائیں کہ کیا ایگریمنٹ میں کیا تھا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، جو میں پہلے بھی بار بار ذکر کرتا رہا ہوں۔ اسی طرح ہیسکو اور سیپکو کے شدید بجلی کے بحران کے حوالے سے کیا حل ہے ان کے پاس، لیکن بڑے افسوس ہے کہنا پڑتا ہے کہ، اور جس کے مطلب یہ بات کہنے پر میں حق و جانب ہوں کہ سندھ کے لوگوں کو سزا دی جا رہی ہے، سندھ کے لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، سندھ کے لوگوں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے بجلی کے معاملات پر، چاہے اوور بلنگ ہو، ٹرانسفارمروں کی خرابی درست نہ کرنا ہو اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو، بلوں کی ڈیٹیکشن ہو۔ تو میں مطلب ہم نے چیئرمین نیپرا کو دوبارہ لکھا ہے اور انہوں نے مجھے سے آج میرا رابطہ ان سے ہوا تھا، کل بھی ہوا تھا، آج مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ بدھ کو ادھر آ رہے ہیں اور ہم کوشش کریں گے وزیر اعلیٰ سندھ بھی ان سے ملیں اور ہم بیٹھ کے بجلی کے مسائل حل کریں۔ لیکن وہ ایک ریگولیٹر ہیں، لازمی ہے، مطلب انہوں نے ہماری بات سنی ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں، وہ آ رہے ہیں، لیکن وفاقی حکومت کے نمائندے میں کسی نے بھی رابطہ کرنے کی اخلاقی جرات بھی نہیں ہے اور مطلب ایک کرٹسی ہوتی ہے، وہ کرٹسی بھی نہیں ہے کہ ہم سے رابطہ کر سکیں۔ یہاں ہیسکو اور سیپکو کے سربراہان کو وائس رائے بنا کے بھیج دیا گیا ہے اور وہاں کے وہ اس طرح حکمرانی کر رہے ہیں جیسے کہ محکوم قوم کے لوگوں کے اوپر حکمرانی کی جاتی ہے اور کسی کی بات سننے کو تیار نہیں اور کھلی کچہریاں رکھ کر، میٹنگیں رکھ کر وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ تو مطلب ایسے بھگوڑے سربراہان جو رکھے گئے ہیں سیپکو ہیسکو کے، ان کا بھی مطلب ان سے بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے، اسی لیے ہم نے گزارش کی تھی نیپرا کو، وہ بدھ کو ادھر آ رہے ہیں کراچی میں، تو ہم ان سے کمنگ بدھ کو جو مجھے آج میں آفس سے آنے سے پہلے مطلب ان کی طرف سے میسج آیا، تو میں وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی رابطہ کر کے کوئی ٹائم فکس کراؤں گا، ان کا ملاقات کراؤں گا۔ پوری اپنا جو مجھے اطلاع ملی ہے کہ جو ہماری اتھارٹی ہے اس کے اور باقی ممبران پوری اتھارٹی آ رہی ہے۔ میں نے ان کو یہ بھی گزارش کی ہے کہ کچھ ضلعوں میں جا کے وہ پریس اپنا کھلی کچہری بھی کریں اور لوگوں کی شکایات بھی سنیں، کیونکہ لاڑکانہ میں، شکارپور میں، جیکب آباد میں، کشمور میں، سکھر میں، گھوٹکی میں، ہر جگہ بے تحاشا اس طرح کے واقعات ہیں کہ لوگ بہت پریشان ہیں۔ اور وزیر توانائی جب بھی ادھر آتے ہیں تو گورنر ہاؤس سے باہر وہ نکلتے نہیں ہیں، گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے میٹنگ کر کے چلے جاتے ہیں۔ جو سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں سندھ حکومت، ان سے وہ بات کرنے کو بھی گوارا نہیں سمجھتے، وہ نہیں سمجھتے کہ ہم ان سے بیٹھ کے بات کر کے ان کو مسائل کا حل بتا سکیں، اور اپنے ہی دو چار لوگوں سے مل کے بیٹھ کے وہ لولی پاپ ان کو دے کے چلے جاتے ہیں اور مطلب کوئی حل نہیں نکلتا۔ اور اس کے علاوہ یہاں سپریم کورٹ میں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے جو ہلاکتیں ہوئی تھیں کراچی میں، اس کا نوٹس لیا گیا تھا اور انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ احکامات دیے تھے کہ اگر کوئی بھی ہلاکت ہوتی ہے تو بجلی کا جو سربراہ ہے اس ادارے کا اس پر ایف آئی آر کٹے گی، تو ہم بھی اس پر عمل کرنے جا رہے ہیں۔ اور ابھی تک تو یہاں یہ ہوا ہے کہ وہاں دیہاتوں میں، چھوٹے شہروں میں سے لوگ ان کو سمجھا بجھا کے ایف آئی آر نہیں کراتے، تو ہم نے ان سے سب سے رابطہ کیا ہے اور گھوٹکی میں کل واقعہ ہوا، میں نے خود رابطہ کیا ہے، سلطان کوٹ میں واقعہ ہوا، میں نے خود رابطہ کیا ہے، دادو میں واقعہ ہوا، میں نے خود رابطہ کیا ہے، اور اب اگر وہ ایف آئی آر لوگوں پہ پریشر ڈال کے نہیں کرائیں گے تو اسٹیٹ ایف آئی آر کرائے گی۔ اس سلسلے میں مشاورت جاری ہے میری لاء ڈپارٹمنٹ سے اور ہم نے احکامات بھی جاری کیے ہیں لیگلی، اس کو ہم دیکھ کر، نہیں تو پھر ہم حکومت سندھ جو ہے وہ جو ہیسکو سیپکو کے بڑے ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان پر ایف آئی آریں کٹیں گی اور پھر وہ کورٹوں میں اس کو فیس کریں گے۔ یہ بھی احکامات دے دیے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ گیس کا ایشو تھا، گیس میں بھی سندھ خود کفیل ہے لیکن اس کو گیس نہیں دی جا رہی، تقریباً 2.5 ملین ایم ایم سی ایف ڈی جو ہمارا گیس کی پیداوار ہے اور ہمیں 1000
के लगभग दिया जा रहा है। तकरीबन 1600 MMCFD दूसरे सूबों को दिया जा रहा है। उस पर भी हमने चीज़ें उठाई हुई हैं, फेडरल गवर्नमेंट को ख़त भी लिखे हुए हैं और CCI में भी वज़ीर आला सिंध ने इसको उठाया है, तो उसका मसला भी हल करें। एनर्जी के मसले हमारे हल नहीं हो रहे, तो हम तो यही करेंगे कि अगर पानी के नाले साफ़ नहीं होते तो NDA में आ जाती है, तो हम वज़ीर आज़म को कहते हैं कि अपने बिजली के मसले भी देखें, अगर नहीं हल हो सकते तो NDA में के हवाले किए जाएँ, ताकि वो मतलब इस मसलों को हल कर सकें, जिस तरह बाकी मसलों का हल NDA के पास है। और हम NDA के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमारा साथ दिया और यहाँ भी आए और कोविड में भी उन्होंने हमारा ताउन किया सूबों के साथ। तो ये मसला भी हमारा हल करवा दें अगर बिजली का, और वो उसको देखें और टेक ओवर करें ये मिनिस्ट्री, ताकि मतलब ये मसला हमारा लोगों का जो कि बहुत ही सीरियस मसला है वो हल हो सके। उसके अलावा कुछ दिनों से बातचीत चल रही है सिंध के हवाले से और सूबे के हवाले से और कराची के हवाले से। कराची जो है वो सूबा सिंध का टूट हिस्सा है, ये टूट नहीं सकता, ये लोगों को जहन में है। लेकिन शायद मैं समझता हूँ कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियाँ आने वाले लोकल बॉडीज़ इलेक्शन के लिए कोई एक स्टंट ढूंढ रही हैं, कोई एक नारा ढूंढ रही हैं, तो शायद उनको ये नारा मिला है। लेकिन आपने देखा होगा ये सब हमारे साथ असेंबली में बैठते हैं और बाद में कुछ तो हमारे साथ हुकूमतों में भी शामिल रहे हैं, तो उस वक्त ये बात नहीं करते। जब भी इनको कोई ब्लैकमेलिंग करनी होती है, कभी किसी और अपना कोई सियासी मकसद होता है, तो ये बात आती है। हम ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि कराची जो है सिंध का हिस्सा है, दारुल हुकूमत है, और आज से नहीं है, ये मतलब सदियों से है। जब से कोलाची और इस तरह के नाम उसके थे, उस वक्त छोटा गांव था, उस वक्त भी वो सिंध का हिस्सा था और आज भी सिंध का हिस्सा है। और हम कराची को ओन करते हैं, कराची और कराची के लोगों को ओन करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ के मसाइल हल करेगी और इंशाल्लाह मतलब जो सोच है कुछ लोगों की इस्लामाबाद में बैठ के, या यहाँ वाले कुछ लोग जो कि इस्लामाबाद से नए नए जो सियासतदान बने हैं, वो सिंध को कोई लावारिस सूबा समझते हैं। सिंध लावारिस नहीं है, सिंध मालकों के साथ है और इंशाल्लाह इसकी मालकी की जाएगी और यहाँ के इशूज़ भी हल किए जाएंगे और उसका तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाएगा। और 18वीं तरमीम के बारे में भी बातें चल रही हैं। मैं तो कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को शुक्रगुज़ार होना चाहिए आसिफ अली जरदारी साहब का कि उन्होंने 18वीं तरमीम पास कराई। अगर वो 18वीं तरमीम न होती तो ये 2 साल की कारकर्दगी देखते हुए हमारे सदर आरिफ अलवी साहब अभी तक 58(2)B का इस्तेमाल कर चुके होते। तो इसलिए उनको शुक्रगुज़ार होना चाहिए और इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। यही बताने के लिए आप लोगों को मैंने आज तकलीफ़ दी थी कि हमारे इश्यूज़ हैं जो सिंध के, वो हाईलाइट करूँ। मज़ीद किसी को सवाल हो तो। अपना शेख साहब ये बता रहे हैं शेख साहब कि इस वक्त हेस्को, सेप्को और के इलेक्ट्रिक, हेस्को, सेप्को, के इलेक्ट्रिक, ये तीनों जो है बकौल आपके कि लाइलाज है। इस वक्त कोई वफाकी हुकूमत आवाम को तसल्ली दे रही है, कोई एक रोड मैप दिया जा रहा है कि भाई आपका लोड शेडिंग का, ओवर बिलिंग का मसला इतने अरसे में हल करेंगे, ना ही जो है सूबाई हुकूमत के अख्तियार में ये चीज़ें आती हैं। तो ये मसला हल कैसे होगा? ना तो टाइम फ्रेम है दोनों हुकूमतों के पास। देखिए जी, ये मसला हम तो बार बार कहते हैं, ये मसला बेसिकली बुनियादी तौर पे ये वफाकी हुकूमत का मसला है। पावर डिवीज़न के अंडर में आते हैं, उनके सरबराहान भी वो खुद रखते हैं, पॉलिसियाँ भी खुद बनाते हैं और उनके जो डेवलपमेंट वगैरह है, जो मज़ीद उसमें चीज़ें लाई जाती हैं, तो वो भी मरकज़ी हुकूमत करती है। और रेगुलर रेंट का नेपरा है, वो भी ताल्लुक़ ज़्यादातर उसका मरकज़ी हुकूमत से। लेकिन अभी हमने आके उनके साथ बहुत गहरा राब्ता रखा है और पूरे इन पिछले 2 महीनों में तो बहुत ज़्यादा हमने उनके साथ कोऑर्डिनेशन में है। वो आए भी थे पहले, अभी भी आ रहे हैं। पहले भी जो इंक्वायरी कराची इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ की, हमारे ख़तों के बुनियाद पर की थी। तो मतलब ये करना बुनियादी तौर पे उनको है, लेकिन स्टेक होल्डर सिंध गवर्नमेंट है सबसे बड़ी, इसमें सिंध के लोग हैं और उन लोगों की बुनियाद पर। लेकिन जो हम रवैया देख रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट का, वो सिंध के लोगों की हुकूमत से तो बात नहीं करते। गवर्नर हाउस में आके एक छोटी सी आपस में मीटिंग करके और गपशप लगा के ज़ाती मसाइल अपने घूम फिर के वापस चले जाते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे साथ बैठें और इन मसलों का हल निकालें। एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होगी, शॉर्ट टर्म होगी और दरमियानी टाइम मुद्दत की स्ट्रेटजी होगी और उसके बाद फिर ये मसला हल होगा। हम उनकी मसाइल हल करने में भरपूर मदद करेंगे, लेकिन ये किसी चीज़ के लिए भी तैयार नहीं है। ये बताइए कि आप मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं, तो कोई वर्किंग की होगी? कितने लोग इस वक्त जो बिजली करंट लगने से हलाक हुए हैं दिन भर में, आपने कोई वर्किंग की होगी तो कितने मुकदमा दर्ज करेंगे? दूसरा ये सवाल है कि इस
इस वक्त वफाक ने तो सिंध को दीवार से लगाया हुआ है, लेकिन 70% सिंध के जो इलाके हैं वो सोलर पे कन्वर्ट हो चुके हैं। सिंध हुकूमत ने सब्सिडी देने के हवाले से या आवाम की भलाई के लिए इस वक्त तक क्या इक़दाम किए? देखिए जी, जहाँ तक फौतगियों का ताल्लुक है, कराची का फिगर भी आता रहा है, तकरीबन 12 पहले उसमें हुए थे, अभी भी कोई तकरीबन 8-10 अमवात अभी हुई हैं। और इसके अलावा जिस तरह मैंने बताया कि एक रिपोर्टेड केस हैं दादू के, जिसमें माँ और बेटी अपना का इंतकाल हो गया, माँ और बेटे का, और बच्ची का जो है पूरा हाथ और साइड जल गई। इसी तरह सुल्तान कोट में एक बच्चे की जान गई है, कल घोटकी में एक बच्चे की जान गई है। तो मतलब इस तरह और भी हम डिटेल्स जमा कर रहे हैं और उन वालिदैन को भी कह रहे हैं जिन्होंने भी FIR करानी है, सिंध हुकूमत भरपूर ताउन करेगी। अच्छा, नंबर 2, आपने सोलर की बात की, तो 70% सिंध अगर सोलर पे हो जाए तो मसला ही ख़त्म हो जाए। इस तरह की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही नहीं है और हो रहा है। सोलर हमने लेकर आए और तेज़ी के साथ हो रहा है, और सब्सिडी वाला जो प्रोग्राम है अनकरीब हम लॉन्च करेंगे, थोड़े दिनों में आपको उसका भी तफसील बता देंगे। अच्छा शेख साहब बताइएगा कि एक पुरानी बात है, माजी में बाप से बात होती रही है, जो फेडरल इदारे हैं आइनी तौर पे उनमें सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी होना बहुत ज़रूरी है। जितने गैस की बड़ी कंपनीज़ हैं, बिजली की बड़ी कंपनीज़ हैं, लेकिन अभी तक उन इदारों में सिंध हुकूमत को नुमाइंदगी नहीं दी गई है, जबकि वो ऑपरेशन यहाँ सूबा सिंध में कर रहे हैं, काम सूबा सिंध में कर रहे हैं, लेकिन आपकी उनके पास कोई नुमाइंदगी नहीं है। इस पे माजी में आपने बात भी की थी, लेकिन वो बात मेरा ख्याल है जहाँ है वहीं है, वफाक ने आपको नुमाइंदगी नहीं दी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नुमाइंदगी इस वक्त हमारी न सुई गैस में है, न ओगरा में है, न NTDC में है, न CPPA में है। ये वो इदारे हैं जो कि पूरे पाकिस्तान के लोग से इस्तेमाल करते हैं, इसको फ़ायदा उठाते हैं इनका, लेकिन इनमें कहीं भी नुमाइंदगी नहीं है। सिर्फ वहाँ बाबू जो हैं इस्लामाबाद के, वही इस पे काम चलाते हैं। अभी CCI में भी मसला उठा था, लेकिन वो भी उस पर फिर कमेटी बन गई है, शायद थोड़ी देर में वो फैसला करे। हम एक दफ़ा फिर मुतालबा करते हैं कि ओगरा में भी होना चाहिए और NTDC में भी होना चाहिए, और बाकी जो इदारे CPP है उसमें होना चाहिए, और सुई सदरन में भी होना चाहिए। और सुई सदरन में मरकज़ी हुकूमत ने अपने तौर पे नुमाइंदे मुकर्रर कर दिए, सिंध हुकूमत को नहीं पूछा। ओगरा नेपरा एक इदारा है जहाँ हमारी नुमाइंदगी सूबों की है, वहाँ भी फराज शिबली साहब ने एक कानून पास करवाया है सेनेट से, जिसमें उन्होंने उसकी नुमाइंदगी ख़त्म करने का बिल पेश करने जा रहे हैं कौमी असम्बली में। वो हमने अपनी पार्टी को, अपने तमाम लोगों को कहा है, हम सिंध के अवाम को बताना चाहते हैं और फराज शिबली साहब को भी कहना चाहते हैं कि देखिए जी, हर वक्त वो पावर में नहीं रहेंगे, सूबों की नुमाइंदगी, सूबों का हक सूबों को मिलना चाहिए। ऐसा भी फरमाइएगा कि शहर भर से शहरी की शिकायत आ रही है कि गैस और बिजली के बिल ओवर बिलिंग की शिकायत आ रही है, उस हवाले से गवर्नमेंट क्या? देखिए जी, उस हवाले से हमने अपने पास भी सेल खोला हुआ है, हमारे पास भी शिकायतें आ रही हैं, वो हम कराची इलेक्ट्रिक के साथ हमारा रब्ता है, उधर भेज देते हैं। अगर किसी के पास कोई शिकायत है तो दे दें, और हम ये जब नेपरा वाले अभी इधर आएंगे तो उसमें ये पॉइंट भी हम रखेंगे कि उसका कोई मुस्तकिल बुनियादों पर कोई इसका हल, कोई दफ्तर, कोई इस तरह का चीज़ हो। बल्कि मैंने नेपरा को कहा है कि वो हर डिस्ट्रिक्ट में या डिवीज़नल हेडक्वार्टर में अपना दफ्तर रखें, उनके डायरेक्टर्स हैं वो बैठें, और हम भी अपने लोग उनके साथ बिठाएंगे ताकि वो बैठ के लोगों के मसाइल, बिजली के मसाइल हल कर सकें। सिंध जे आवाम जे लाइ हल कहिड़ो आहे? सिर्फ़ु सोलर ते वेंदा, विंड ते वेंदा, या वफ़ाक़ सां ॻाल्हाए उहो मसइलो हल कंदा? इहो केसीं ताईं ईंदड़ गर्मियुनि ताईं मसइलो हल थी सघे थो आवाम जो? पंहिंजे तौर ते पैदा कंदा बिजली या वफ़ाक़ सां कोऑर्डिनेट? ॾिसो, हाणे हिकिड़ो सिस्टम तय थियल आहे जंहिंमें बिजली जेका आहे असां पैदा कयूं था, सिंध जी जेका बि ज़रूरत आहे उन खां घणी बिजली असां पैदा कयूं था। जेके असांजा पावर प्लांट्स आहिनि उहे जामशोर में बि आहिनि, त उहे कोट कासिम में बि आहिनि, त गुड्डू में बि आहे, थर में बि आहे, त उहो सभु बिजली पैदा थिए थी। ऐं प्लस उन्हनि सां वेही करे असां ॻाल्हाईंदासीं, छो जो इहो बुनियादी तौर ते हिन वक़्तु हू संभालनि था, या त हथ मथे कनि, असांजे हवाले कनि बिजली जो निज़ाम सूबे में, असां संभालण लाइ तयारु आहियूं। असां उन सां नेगोशिएट करे पोइ असां उन मसइले खे ॻाल्हाईंदासीं। असां पंहिंजी काबीना में, वज़ारत में, पंहिंजी पार्टी में मसइलो खणी वेंदासीं। उहो मतिलबु पहिरियों उहो ॿुधाइनि त उहो छा था करणु चाहिनि, न त पोइ असां इहो बि हल सोचींदासीं। सिंध के कितने ही मसले आपने बताए जो वफाक जातियाँ कर रहे हैं, इस तरह एक सिंध में और अहम इशू है मिसिंग पर्सनस का। रोज़ाना लोग आकर भूख हड़ताल करते हैं, एहतजाज करते हैं, तो सिंध हुकूमत पहले भी इस तरह का सिंध हुकूमत को शिकायतें की गई हैं।
तो ये क्या कर रही है? इस देखिए, हवाले सिंध से हुकूमत के बारे में वज़ीर आला साहब का बयान था कि उस मसले को टेकअप कर रहे हैं, उन्होंने पुलिस से टेकअप किया हुआ है, उस पर इंशाल्लाह जल्दी ही मतलब आपको होम डिपार्टमेंट की तरफ से वज़ीर आला साहब से मिल जाएगा। शेख साहब, मेरा सवाल ये है कि अभी आपने कहा कि हम एफआईआर दर्ज कराएंगे। आप तो एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, लेकिन वो तो 50-50 हज़ार रुपए की बेल पे बेल आउट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। दूसरा मेरा सवाल ये है कि फेडरल गवर्नमेंट ने जो अभी आईपीपी से एक रिसेंटली एग्रीमेंट किया है और उनका दावा है कि इससे बिजली सस्ती होगी, वो आईपीपी अपने रेट रिड्यूस करेंगे, क्या आप उससे मुतमईन हैं और पब्लिक को कोई रिलीफ मिलेगा? देखिए जी, आपने केस के बारे में बात की है। वो जो केसेस एफआईआर बुनियादी तौर पे लोग जो है कटवाते हैं, हम इस बात पे हमारी स्टडी हो रही है कि हम आया अगर लोग नहीं करवाते या किसी प्रेशर में आके वो अपना विड्रॉ करते हैं तो हम स्टेट की तरफ से एफआईआर कराएं। उस पर मैं लॉ डिपार्टमेंट से मशवरा कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि वहाँ से भी ओके होगा। तो देखिए, अब कोर्टों के मामला में मैं नहीं बोल सकता, कोर्ट दे सकती है। दूसरा आपने सवाल किया गवर्नमेंट ने जो एग्रीमेंट किया, देखिए जी, हमसे वो शेयर नहीं किया गया, अखबारों में पड़ा है। और जहाँ तक बिजली कम करने का सवाल है, किसी भी तरीके से बिजली कम हो, लोगों को रिलीफ मिले, हम उसको वेलकम करेंगे। अच्छा शेख साहब, अभी सुप्रीम कोर्ट में जो है नेपरा के चेयरमैन ने जो है वो बताया कि इलेक्ट्रिक और ये सारी जितनी भी एजेंसीज हैं, ये सारी वहाँ से जो है वो अपनी ज़मानतें करा लेती हैं। उसके बाद जो है काफ़ी सारे सार्फिन के पैसे हैं, उसके ऊपर भी उन्होंने स्टे लिया हुआ है। इस तरह मुख्तलिफ चीज़ों पर स्टे लिया हुआ, तो आप किस तरह ये एफआईआर कराएंगे, वो स्टे ले लेंगे? देखिए जी, हम अपना काम करेंगे, कोर्टें अपना काम कर रही हैं और लाजमी तौर पे कोर्टों के मामलात पर हम ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते। तो कोर्ट्स आज़ाद हैं, कोर्ट्स फैसला करती हैं। चीफ जस्टिस साहब के भी नोटिस में चीज़ें हैं, उम्मीद है कि उस पर कोई ना कोई कोर्ट्स की तरफ से कोई कार्रवाई होगी। आपने अभी कहा कि बिजली का निज़ाम जो ख़राब है, जिस तरह और मामला पे एनडीएम में आया है, तो पूरे सिंध की लिए बात कर रहे हैं आप या सिर्फ कराची की बिजली की? पूरे सिंध की बात कर रहा हूँ। पूरे सिंध में एक अजाब से गुजर रहे हैं लोग और इस वक्त जो है बिल्कुल मैं ये कहता हूँ कि लोगों को सियासी तौर पर सज़ा दी जा रही है, ना कोई ना करदा जुर्म की, जिससे लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो गुजारना मुश्किल है इस गर्मी में। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कराची में आए तो उनका टायर गटर में फंस गया। इंक्वायरी की है कि कौन से इलाके में उनका टायर जो गटर में फंसा है। हो सकता है शायद वो इस्लामाबाद में कम रहते हों, कराची में ज़्यादा रहते हों। तो सिंध समेत मुख्तलिफ और भी अजलाएँ चीफ जस्टिस को वो नज़र नहीं आते। तो इस हवाले से क्या आप भी सो मोटो के एक्शन का मुतालबा करेंगे कि सिंध के लोगों की ज़िंदगी अजाब बनी हुई है? बाकी जो अजला उनमें हेस्को सेप्को जो है वो बिजली नहीं मुहैया कर रहा, 18-18 घंटे शदीद गर्मी में जो है बिजली नहीं। मैं तो चीफ जस्टिस साहब से बिल्कुल गुजारिश करूँगा कि वो ज़रूर इसका सुओ मोटो नोटिस लें। जिस तरह कराची इलेक्ट्रिक के मामला भी उन्होंने बहुत गौर से देखे हैं, तो हेस्को सेप्को और जो पावर डिवीज़न है उन मामला को भी सुओ मोटो लेके एक्शन लें ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। साहब, ये आप बिजली की बात कर रहे हैं, लेकिन सुई सदर गैस के भी यही जो है नॉट करनी है। लॉकडाउन के दौरान जिन्होंने बिल भरे उनके भी दोबारा बिल आ रहे हैं, उनके हवाले। देखिए, बिल जहाँ तक बिलों का ताल्लुक है वो बात